Good morning, students. Today we will do chapter number 5 of class 7. Students, 5.1 and 5.2 already done. So in this video we will do exercise 5.3. So in 5.3 we will discuss about subset. What is subset? If A and B are two sets, let element of A are 1, 2 and 3 and element of B are 1, 2, 3 and 4. So what is subset? Subset, if all the elements of A lies in set B, it means every element of set A is also the member of set B, then A is called subset of B and we can represent it as A is the subset of B. अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, A सेट के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B के अंदर भी हैं, तो A क्या होगा? B का सबसेट. एंड आफ्टर दैट superset. What is superset? In subset, if A is the subset of B, then B is the superset of A. We can call B is superset of A and we can represent it as B is the superset of A. अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं तो A तो क्या होगा? B का सबसेट और B क्या होगा? A का superset. After that, proper subset. Proper subset क्या होगा? If A and B are two set, then A is called proper subset of A, and if A is not equal to B, A is the proper subset of B. This is the sign of proper subset. It means not equal to B. In this subset, A can be equal to B. For example, if A is 1, 2, 3 and B can be also 1, 2, 3, means in both sets elements may be equal, but in proper subset both these set may not equal, cannot be equal. So A is the proper subset of B. For example, one, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. In subset both these set may be equal, but in proper subset both can't be equal. So we can write it A is the proper subset of B, means at least one element of B, at least one element of B is not an element of A. B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A के अंदर ना हो. ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर सबसेट. एंड स्टूडेंट्स, every set is the subset of itself, means for example, find all subsets of set A. Let's take an example to find all these subsets. How we can find subsets and proper subsets? So let A is the set of element 1 and 2. So write all these subsets of set A. How you can find all these subset of set A? So first of all, a null set or phi is द सबसेट ऑफ एवरी सेट. जितने भी सेट हैं, किसी भी सेट का अगर सबसेट निकालना है तो फाई बोलते हैं या फिर नल सेट. तो नल सेट जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है. उसके बाद वी कैन टेक सिंगल एलिमेंट्स. सो 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, 2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, एंड एवरी सेट इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सारे जो सेट हैं वो
खुद के भी क्या होते हैं, सबसेट। सारे सेट खुद के सबसेट होते हैं, नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर? एंड टू फाइंड हाउ मैनी सबसेट्स इन ए सेट मीन्स टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, there is a formula to find number of subsets 2 raised to power n. n is the number of element in a set. For example, let in this example a is equal to 1 and 2, so total number of element in set a is 2, so total number of subsets are 2 raised to power 2 means 4. So 4 are these subsets of set a, 1 2 3 4. So there are 4 subset of set A. And proper subset, if we will not take this set मीन्स प्रॉपर सबसेट में क्या था कि जब दोनों ही सेट इक्वल ना हो, दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये जो सेट था ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो इसको छोड़ के बाकी जो 3 बच गए वो क्या हो गए, इसके प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 मीन्स 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3। देखो रिपीट कर रहा हूँ एक बार। सबसेट क्या होता है, सबसेट वो होता है जैसे 2 एलिमेंट हैं ए, सेट ए और सेट बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं तो ए क्या होगा, बी का सबसेट। सबसेट मतलब छोटा पार्ट जैसे बोलते हैं ना, सब पार्ट ऐसी। तो ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर हैं तो ए क्या होगा, इसका सबसेट, और बी को क्या बोलेंगे, उसका फिर सुपरसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, अगर 2 सेट थे, जैसे ये ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट भी है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन बी का एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है, तो ए को क्या बोलेंगे, बी का प्रॉपर सबसेट, वो इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। क्लियर? जैसे अगर यहाँ पे 5 भी होता, मान लिया ए के सारे एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट भी क्या है 1 2 3 4 5, तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, फिर ए इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। क्यों, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है बी का जो ए के अंदर नहीं है। अब कैसे निकाल सकते हैं, अब जैसे सबसेट तो पता लग गया कैसे है, क्या है, तो सबसेट निकालते कैसे हैं, तो टू फाइंड द सबसेट ऑफ सेट ए, लेट सेट ए क्या है 1 और 2, इसके एलिमेंट हैं 1 और 2, तो इसके सबसेट कैसे निकालेंगे, कितने सबसेट्स होंगे, तो टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का। एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर n, जितने एलिमेंट हैं, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। सो 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो जो सेट ए था उसके 4 सबसेट हो सकते हैं। अब कौन कौन से होंगे, कैसे निकालते हैं वो, उसके सबसेट होंगे, एक तो होगा नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी सेट, किसी भी सेट के अगर सबसेट निकालने तो एम्प्टी सेट होगा, और वो सेट खुद, एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो सेट होगा वो खुद भी उसका सबसेट होगा, और एक नल सेट, ये दो तो ये निकलेंगे। और बाकी कैसे निकालते हैं, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, मतलब पहले नल सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट 1, फिर 2, उसके बाद फिर 2 एलिमेंट, तो 1 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। टू फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में कैसे निकालते हैं, 2 रेज टू पावर n माइनस 1, मतलब जो सबसेट इक्वल है उसी सेट के, गिवन सेट के इक्वल है, उसको छोड़ के बाकी जो सबसेट्स बच गए वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट, मतलब वो प्रॉपर सबसेट बच गए। तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1, माइनस 1 क्यों गया, एक जो सेट था उसको माइनस कर दिया, उसको नहीं लेना है। सो 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, सो देर आर 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। After that, power set. पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट
all subset of set A is called power set. Example, if A is the set of element 2 3 and write all the subsets. subsets क्या होते हैं? सबसेट ऑफ ए क्या होंगे? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट 2 3 इज ऑल्सो सबसेट, एंड आफ्टर दैट 2 3 सेट ऑल्सो सबसेट ऑफ इट सेल्फ. सो दीज आर द सबसेट्स. एंड व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट वी कैन राइट इट एज पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू द collection of all the subset of A. Means all the subset of set A will be the member of power set. मतलब जो सेट ए के जितने भी सब सेट आएंगे वो सारे ही क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के. तो ये क्या होगा? पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स. आफ्टर दैट यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ अदर गिवन सेट्स. मीन्स लेट set A have element 1 2 and 3 and set B have element 4 5 and 6. So universal set will be universal set contains all the element of other given sets 1 2 3 4 5 6. Means if A have 3 element 1 2 and 3 and B element 4 5 and 6, and universal set will be the set of all elements of other given sets. मतलब कम से कम वो हो, एक्स्ट्रा कुछ भी हो, लेकिन ये सारे एलिमेंट क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होंगे. अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं है फिर. क्लियर? आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन गिवन सेट. मतलब जैसे इसी एग्जांपल से लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए डैश एंड वी कैन कॉल इट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन गिवन सेट. गिवन सेट के अंदर नहीं है. यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो ए के नहीं हैं, मतलब ए वाले एलिमेंट इसमें से छोड़ देने हैं. तो ए के एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 और 3. तो 1 2 और 3 को ना लेके इनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए वो सारे ही क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. क्लियर? एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी के एलिमेंट सारे छोड़ देने. बी के एलिमेंट कौन कौन से थे? 4 5 एंड 6. तो 4 5 6 को छोड़ के जो एलिमेंट बच गए यूनिवर्सल सेट में से वो क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. क्लियर? सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज. सो कम टू एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Which of the following statement are true? If set A equal to 1 2 3 4 5 6, these are the elements of set A. So in first part 2 3 subset of A means you have to check if all the element of this set lies in A or not. If lies then it is a subset, if not lie then it is not a subset. So 2 3 elements are lies in A, so it is true. In second 1 2 3 4 5 6 7 is superset of A. A का superset है या नहीं है? तो
चेक क्या करना है इसमें कि ए इसका सबसेट है, ऐसे चेक कर लो, या फिर ये इसका सुपरसेट है। ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट ए के जो हैं वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू। दिस इज द सुपरसेट ऑफ ए। नेक्स्ट थर्ड, 8 इज द सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट, 3 5 1 7 इज द सुपरसेट ऑफ सेट ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं या नहीं है, तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। देन फिफ्थ पार्ट, 1 इज द सबसेट ऑफ, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 दिस इज द सबसेट ऑफ ए के अंदर सारे एलिमेंट हैं, तो दिस इज ट्रू। दिस इज सुपरसेट ऑफ ए, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स नल सेट में हैं या नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट। तो पावर सेट क्या बताता तुम्हें, पावर सेट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इन पावर सेट कितने एलिमेंट हैं पावर सेट के अंदर। पावर सेट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो सबसेट होते हैं सेट के, जो गिवन सेट होता है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वही तो एलिमेंट होंगे उसके। तो सबसेट्स कैसे निकालते हैं पहले वो चेक करो। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ये भी कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। सेकंड पार्ट कर देते हैं। बी हैज एलिमेंट ए एंड बी, सो हाउ मैनी नंबर ऑफ पावर सेट, we can write it as NPA. NPA means number of elements of power set. PA means power set of set, sorry, B. So 2 raised to power n. So 2 raised to, how many elements in set B? A and B means 2 elements. So 2 raised to power 2, 4. Fourth part or third part, C has elements M, L, M and N. So number of elements in power set of C, power set C, how many elements? So 2 raised to power 3, 8 elements in the power set. Now come to question number 3. In question number 3, find the number of proper subset. How many proper subset? In second question we have to find number of subsets. In question number 3, proper subset. Proper subsets means -1 करना है किस में से, नंबर ऑफ सबसेट्स में से। जैसे इसमें 2 raised to power 3 निकाला, 8 निकाला था, उसमें क्या करना, -1 करना, मतलब 7 बचेंगे फिर उसमें। सो फर्स्ट पार्ट देखो, सेट P हैज एलिमेंट natural number less than 5. So first of all write all the element of set P. So natural number less than 5 are 1 2 3 and 4. These 1 2 3 4 are the elements of set P. And now we have to find number of proper subset. Number of proper subset. So number of proper subsets, we have formula 2 raised to power n minus 1. So 2 raised to power 4 minus 1 means 15. So 15 are proper subset.
and if we have to find subset number of subsets, then 16. Now question number 4. Write down all the subsets. Let first part, set A has element A. So number of subsets 2 raised to power 1 means 2. दो बनेंगे कौन कौन से, देखो subsets of A. सबसेट ऑफ ए कौन कौन से बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट और दूसरा सेट इटसेल्फ. एक ये खुद ही बनेगा, क्यों, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2. 2 raised to power 1 मीन्स 2 सबसेट बनेंगे, तो 2 बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक ये खुद बनेगा. थर्ड पार्ट देखो इसका, सेट बी 1 3 एंड 5. सो नंबर ऑफ ये सबसेट्स कितने हो गए, सबसेट ऑफ बी, तो कितने बनेंगे सबसेट इसके, बी सेट के एलिमेंट है 1 3 और 5. सो देर आर 3 एलिमेंट इन सेट बी. सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 raised to power 3 मीन्स 8 सबसेट्स बनेंगे. इसके कौन कौन से, एक तो एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट लेना है 1 3 5, सिंगल ले लिया. उसके बाद 2 के पेयर बनाने हैं 1 3 3 5, उसके बाद 1 5. मतलब पहले 2 में क्या करेंगे, पहले दोनों, फिर लास्ट के दोनों, फिर फर्स्ट और थर्ड. उसके बाद सेट इटसेल्फ 3 3 1 3 और 5. सो दीज आर सबसेट्स ऑफ सेट बी. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 वट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग. इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा. यूनिवर्सल सेट क्या होता था कि जिसके अंदर ये लाई करें, मतलब इनके एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, यूनिवर्सल सेट के अंदर हो. ठीक है, तो ऐसा कौन सा होगा, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर. सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मतलब स्क्वायर किसका पार्ट है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट. सो एक्स इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल. और उसके बाद सेकंड क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर. इवन नंबर आर द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर क्या होगा इसका, यूनिवर्सल सेट. क्यों, इवन नंबर कहाँ से लेके आए हैं, नेचुरल नंबर से. आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या होगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ, या एक्स इज ए ट्रायंगल, मतलब जो एलिमेंट होगा वो क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ही पार्ट है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल. सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर कहाँ से है, इंटीजर से, ये इंटीजर्स का पार्ट है. सो सेट ऑफ इंटीजर एक्स इज अ. उसके बाद सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर कहाँ से है, ये भी नेचुरल नंबर का पार्ट है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो सेट ऑफ ऑल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये भी क्या है, ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसका भी सेट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल. उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द सिंबल प्रॉपर सबसेट और नॉट सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट. तो देखो फर्स्ट में क्या आएगा, 1 2 3 इज प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट. 1 2 3 इसके सारे के सारे एलिमेंट अगर इसके अंदर हैं तो ये सबसेट है, नहीं तो फिर नहीं है. तो ये क्या होगा, नॉट मीन्स क्या है, 2 इसके अंदर नहीं है, इस सेट के अंदर 2 लाई नहीं करता, तो इसका सबसेट नहीं है. तो 5 इज द सबसेट और नॉट, दिस इज द सबसेट बिकॉज 5 मीन्स null set. Null set is the subset of every set. X is a rectangle and X is a quadrilateral. Means rectangle quadrilateral में आता है कि नहीं आता है. Rectangle is the part of a quadrilateral.
So this is subset. X is an odd natural number and X is integer. So odd natural number or are also integer. So this is also subset. Fifth part, X is the prime number. So X is the prime number and X is a composite number. ये both are opposite. So prime number not lies in composite number. So this is not a subset. Sixth, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 10, 20, 30, 40. So these all elements doesn't lie in this set. So this is not a proper subset. In question number 7, let A is the set of letter of follow. Means letter used in this word are the elements of set A. So letter used in this F, O, L and W. So there are 4 letters used in this word. So these are the element of set A. After that NA. It means NA means number of element of set A, means cardinal number of set A. So कितने element of 1, 2, 3, 4? So there are 4 elements. Number of subset of A. Number of subsets. So number of subsets कैसे निकालते? 2 raised to power n means 2 raised to power 4, 16. So 16 subset of set A. उसके बाद नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स में से एक माइनस करना है. मीन्स 2 raised to power n minus 1. 16 minus 1 कितना होगा? 15. सो 15 आर प्रॉपर सबसेट. पावर सेट ऑफ ए. Power set of A. In this set you have to write all the subset of this set. First element is empty set. After that take single elements F, O, L, W. Then take pair of elements F, O, OL, LW, FW, FL, then three elements FOL, OLW, देन कौन सा रहेगा? FOL, OLW, FLW, FOW and set itself FOLW. So these are the elements. All the subsets are the element of set, power set. Then question number 8, you can find the power set of all the sets. In question number 8 find the power set of the following set. A के पावर सेट निकालने मतलब इसके सारे सबसेट निकाल के उसको सेट के अंदर लिखना है. बी के भी, सी के भी, डी के भी, ऐसे कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी elements are y, p, x, q, z. Is b is the subset of a or a is the subset of b? b a का सबसेट है या a b का सबसेट है? गिव रीजन. तो इसमें क्या होगा? देखो a के सारे एलिमेंट b
बी के अंदर हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी. So this is true. A is the subset of B and B is the subset of A or not. Check. If all the element of B lies in A, then it is also subset of B, subset of A. So Y, P, X, Q, Z. So element P and Q doesn't lie in set A. मतलब इसका अगर एक भी एलिमेंट A के अंदर नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता. So B is not element of A. रीजन में क्या लिखोगे, बी इसका सबसेट नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ डजेंट लाई इन ए. बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है तो इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है. लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो ए क्या है, सबसेट है बी का. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. Universal set is set of all natural numbers. Universal set of all natural number 1 2 3 4 5 6. You can write it as set of A is the set of all odd natural number. तो A के अंदर क्या है, सारे के सारे odd natural numbers 1 2 1 3 5 7 9. B के अंदर क्या है, B is the set of all even numbers 2 4 6 8. सो फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज क्या बचेगा, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं कि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने हैं, जो बचेंगे वो इसका कॉम्प्लीमेंट है. मतलब देखो नेचुरल नंबर में से अगर ओड नंबर को माइनस कर देंगे, नेचुरल नंबर में से ओड नंबर को माइनस कर दिया तो क्या बचेंगे, इवन नंबर बचेंगे. तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से कट करने हैं. तो कट करने नेचुरल नंबर में से अगर ओड नंबर कट कर दिया तो क्या बचेंगे, इवन नंबर. एंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी क्या था, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर. मतलब ऑल इवन नंबर्स को छोड़ देना है यूनिवर्सल सेट में से. तो नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को कट करोगे तो क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स. So students, this is your exercise 5.3. So this chapter complete. You can do in your fair notebook. In next video we will do next chapter. We will start next chapter.